Good morning, everyone. Yes, in this class, we will discuss some important questions for our exam. As we know, our exams are about to begin. So, we have completed our syllabus. So, today we will revise these some important questions. They will help you in your exam. So, let's start our class. The first question will be some important MCQs I have taken. I have taken from your reader book. These questions based on your reader chapters. So you have to revise your reader chapter very carefully. Got it? So first question is that the training days passed too slowly because ये कौन से चैप्टर का है? Can you tell me? चैप्टर 7. ये कह रहा ट्रेनिंग डेज जो थे बहुत ही धीरे धीरे कट निकल रहे थे. बाय बिकॉज द ट्रेनिंग पीरियड वाज वेरी लो, द ट्रेनिंग वाज वेरी डिफिकल्ट, द ट्रेनिंग वाज एब्सेंट फॉर सम डेज, या द फाइटर फेल्ट नर्वस अबाउट फेसिंग ईच अदर. कैन यू टेल मी द आंसर? वेरी गुड. यहाँ नहीं आएगा. द फाइटर फेल्ट नर्वस अबाउट फेसिंग ईच अदर. The answer is that the fighters, क्योंकि जो fighters थे they both were good friend, best friend. वो अच्छे दोस्त थे, इसलिए क्या हो रहा था, वो एक दूसरे के लिए नर्वस फील कर रहे थे. ठीक है. The answer is that. The second question is that why was leukemia called a bomb disease at the time? क्यों कहा जाता है? Option are that it was caused due to the atomic bombing on Hiroshima. It exploded in the body like a bomb. It was caused due to loud sound of the bomb. It was caused due to category of virus. Yes. Why? क्यों हुआ था ल्यूकेमिया? क्योंकि उस वहां पर क्या हुआ था, हिरोशिमा पर बॉम्बिंग, एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी, इस वजह से. ओके, द आंसर इज फर्स्ट. Our next question is select the line that means hope is always with us. हमें वो लाइन सिलेक्ट करनी है जिसका मतलब होगा होप इज ऑलवेज विद अस. होप हमारे साथ है. होप इज द थिंग विद फेदर्स. जो होप होती है वो फेदर्स के साथ. व्हाट परचेज इन द सोल and sings the tune without the words. I never stop at all. Our answer is at never stops at all. This question is taken from your fourth chapter number 4. Okay. Now next, what did the lessons of neatness say? As we have discussed already our chapter 9, and there was some important words like patience, neatness. Okay. So what is the meaning of the neatness? मतलब साफ सुथरा. तो क्या एक पेशेंट को कैसा होना चाहिए? A sick person should look fresh and energy. A sick person should look fresh and weak. A sick person should be as fresh as dainty as the rose. A sick person should take care of himself and herself. So answer is that a sick person should be as fresh as and dainty as a rose. Okay. Now next question. When does the bird sing sweetest? आप बताएंगे कि जो बर्ड है वो कब हमें सिंग स्वीटेस्ट कब गाता है? The bird sings the sweetest in the gale. The bird sings the sweetest in the wind. The bird sings the sweetest in the garden. None of these. The answer is first. Yes, the bird sings the sweetest in the gale. Our next question is, yes, you do not make noise. First, what do the children wish to do? Children क्या करने की wish करते हैं? Give peace a try. Write happy rhymes about peace. Stop the reasons of discrimination. या all of these. ये सारे हो गए? Yes. ये सभी आएंगे.
Now next question, what should we do to reduce indirect footprint? हमें जो इसको किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं, जो आपके पश्चिम है, जो वाटर फुटप्रिंट है उसको, बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन एन एरिया लेस प्रोन टू वाटर स्कैर्सिटी, reduce the consumptions of water in our houses, reduce official water consumptions, encourage rainwater harvesting in our area. So answer is yes. Next question, according to the poet, what is common between twins and lovers? Twins and lovers के बीच में क्या common है? According to the poet, they live in the same houses. क्या वो दोनों एक ही घर में रहते हैं? They live in the same country. क्या वो सेम कंट्री में रहते हैं? They are born at the same time. क्या उनका साथ में जन्म हुआ है? And they share lifelong connection with one another. They share lifelong connections with one another. This question is taken from your chapter number 10. Okay. Now next, part 2. That was your part 1, means section A. That was there were some MCQs. Now this is based on your grammar chapters. Okay. So first is give suitable question text. As we have already learned this chapter and I have explained 2-3 times, so I hope you should know. Question text. What are question texts? Question text होते क्या हैं? If we ask some question, then we give answer yes or no. In yes or no. या तो अगर आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा जाएगा, देन आंसर विल बी इन नेगेटिव. अगर नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाएगा तो आंसर किस में होगा? पॉजिटिव में होगा. ओके, ये याद रखना है. अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव में है तो आपको आंसर किस में, क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? पॉजिटिव में. अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? नेगेटिव में. और याद रखना है देव, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? प्रोनाउन. प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें काम आती है, प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब. कभी भी अगर किसी पर्सन का नेम है, किसी कोई भी नेमिंग है, कोई भी नेमिंग वर्ड है यहाँ पर, तो आप उस नेमिंग वर्ड की जगह पे प्रोनाउन का यूज करेंगे. ओके. नेमिंग वर्ड्स की जगह पे क्या यूज करते हैं? नेमिंग वर्ड होते क्या है? नाउन. और in place of naming words we have to use pronoun. If your sentence is negative, then your question tag will be in positive. So she did not write well. As we know, यहाँ पर देखेंगे आप, ये कौन सा टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पास्ट. कौन सा टेंस है? नेगेटिव में है. क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? इसी के जस्ट सामने आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे. व्हाट इज योर सब्जेक्ट? शी. एंड व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर? डेड. तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है हमेशा, तो यहाँ पर आ जाएगा डेड शी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर यू टॉकिंग बेटा? You are beautiful. So this sentence is in your positive. So how we will make? You are beautiful. What is helping verb here? Are. So we will make with are. Are you होगा या aren't you होगा? Why? Because this is in positive. तो यहाँ हो जाएगा क्या आप नहीं हो? इसको हम हिंदी में बोलकर देखें. वो बोलता है मैंने अच्छा नहीं लिखा. क्या नहीं क्या लिखा है? तो यहाँ हो जाएगा यू आर ब्यूटीफुल. तुम ब्यूटीफुल हो. क्या नहीं हो? इस तरह से तो बोलते हैं. तो लाइक दिस, इट इज अ प्रीटी फ्लावर. दिस इज ऑल्सो इन पॉजिटिव. तो व्हाट इज द आंसर? इजंट इट. वेरी गुड. इजंट
यस, नेक्स्ट इज वी कैन नॉट डांस ऑन द स्टेज. ओके, वी कैन नॉट डांस ऑन द स्टेज, कैन नॉट आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है. व्हाट इज योर हेल्पिंग वर्ब हियर? इधर मॉडल्स वर्ब कैन और योर सब्जेक्ट इज बी, तो कैन बी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी शुड फॉलो रूल्स. हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए. शुडंट वी, क्या हो जाएगा? These oranges are sour. खट्टी हैं. तो मयंक कैसे बनेगा ये? Aren't these? Very good. Sit down. बहुत इजी होता है. If your sentence is in negative, तो you have to make the question tag in positive. Okay, and if your sentence is in positive, then you have to make your question tag in negative. Next is underline the finite verbs and circle the gerunds. How many times I have taught you this chapter? Okay. As you know, what is finite verb and gerund? Finite verbs क्या होती है? Finite verb subject tense, as we can say person. इसके अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंज हो जाती है. Okay, finite verbs, as I have already told you this, कि finite verbs are changeable verbs. They change according to your subject, your tense और persons. ये हमेशा tense, person या फिर subject के according change हो जाती है. Persons means if person is singular, if person is plural. तो हम according to वो numbers we put their verb. ऐसा ही होता है ना, इज़ में भी ऐसा होता है, या फिर आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, एस यस अकॉर्डिंग टू पर्सन लगता है. ओके, और जो जिरंड होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर नॉन फाइनाइट वर्ब. जिरंड किसका पार्ट होता है? एंड नॉन फाइनाइट वर्ब चेंजेबल होती है क्या? थ्री टाइप्स होती है. विच वन? फर्स्ट इज जिरंड, सेकंड इज इंफिनिटिव, and third participle. पार्टिसिपल में भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. ओके, ये नॉन फाइनाइट है, ये फाइनाइट है. ये नॉन फाइनाइट आपका चैप्टर है, उससे लिया गया है. तो फाइनाइट वो है जो चेंजेबल है, और नॉन फाइनाइट वो है जो टेंस और सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती. कि थ्री टाइप्स होते हैं, जिरंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल. पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. इंफिनिटिव में भी इंफिनिटिव एंड बेयर इंफिनिटिव. इंफिनिटिव में क्या होता है, जो आपकी रूट फॉर्म होती है उसके साथ में क्या लगता है? टू. क्या लगता है? जैसे टू ईट. और बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं होता है, वहां पर कोई मॉडल्स दिए जाते हैं, और मॉडल्स के साथ आप कभी भी कोई भी जैसे वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज नहीं कर सकते. वहां पर आपको रूट फॉर्म यूज करनी पड़ती है. लाइक ईट का ईट ही रहेगा, आई कैन ईट मैंगो, लाइक दिस. ओके, तो बट हमें जिरंड और क्या करना है? फाइनाइट वर्ब देखनी है. तो व्हाट इज जिरंड? जिरंड होता क्या है? यस, लुक एट हियर.
जिरंड इज, कोई भी रूट फॉर्म है उसके साथ में क्या लग जाता है, आईएनजी। क्या लगता है, तो ये क्या बन गया, ईटिंग। और ये वर्क कैसे करता है, एज अ नाउन। किसी भी सेंटेंस में ये वर्क कैसे करेगा, एज अ नाउन। आपको जिरंड फाइंड आउट करने के लिए क्या देखना है कि वर्ब के साथ आईएनजी आता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी आता है। यहाँ पर जिरंड एज ए नाउन होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब एज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। और आपका नाउन आपको एज ए सब्जेक्ट भी मिल सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। प्लेइंग ऑन द रोड इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये बोल रहा है प्लेइंग। प्लेइंग क्या बन गया, प्ले से क्या बना, प्लेइंग। तो ये स्टार्टिंग में है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आपका, तो एज अ सब्जेक्ट है, तो ये क्या है आपका, जिरंड। यहाँ पर जिरंड को क्या करना है आपको, ओके। अब आपको फाइनाइट वर्ब देखनी है, तो यहाँ पर जो आपका इज है, ये क्या है आपका, फाइनाइट वर्ब। ये चेंजेबल है, तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन करेंगे आप। ओके, नाउ नेक्स्ट, ड्राइविंग रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस। यहाँ पर ड्राइविंग बन गया, तो ड्राइविंग को आपने सर्किल किया, ये जिरंड कर रहा है। अब रिक्वायर्स को आप चेंज कर सकते हो, रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, पास्ट टेंस बनाएंगे तो ये चेंजेबल है, तो यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। फिर आ गया, दे लाइक स्विमिंग, क्या पसंद करते हैं। और यहाँ आपका जो ये स्विमिंग है, जिरंड है, वो एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर आप स्विमिंग को सर्किल करेंगे। और जो लाइक है ये चेंजेबल है, अगर यहाँ पर शी होता तो आप क्या कर देते, लाइक कर देते, तो इसका मतलब लाइक चेंजेबल है, तो ये फाइनाइट वर्ब। एनी डाउट इज हियर, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ओके। दिस 2 क्वेश्चन मोर। प्रेइंग टू गॉड, मतलब भगवान से प्रे करना, इज गुड फॉर मेंटल फिटनेस। ये हमारी मेंटल फिटनेस के लिए अच्छा होता है। तो अगेन प्रेइंग को हमने क्या बनाया है, नाउन बनाया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, दिस इज योर जिरंड। नाउ फाइनाइट वर्ब इज। अगर पास्ट में करेंगे तो वॉज हो जाए। ओके, नाउ डांसिंग इज हर पैशन, तो डांसिंग क्या है उसका, पैशन। ओके, तो इज आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज, identify the phrases in these sentences and state their kind, whether they are noun phrase, adverb phrase and adjective phrase. Phrases हमने पहले भी पढ़ लिया है, we have already discussed. Okay. Now what are phrases? Phrases is a group of words that make no sense but not complete sense. इसका मतलब तो होगा but complete मतलब नहीं होगा। And it does not contain a verb or a subject. ना तो इसमें verb होता है ना subject होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, क्या होती है, आई राइट हियर, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। फ्रेजेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल it does not contain a verb and a subject. ओके, इसके अंदर आपको मिलेगी, अगर वर्ब मिलेगी भी तो कौन सी मिलेगी, नॉन फाइनाइट, जो चेंजेबल नहीं होती।
ओके और ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जिसका मतलब तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता है. इट मेक्स सेंस बट नॉट मेक कंप्लीट सेंस. तो इन दिस सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द फ्रेजेस. हमें इसमें फ्रेज को फाइंड आउट करना है, फिर बताना है कि वो फ्रेज नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर आपका एडवर्ब फ्रेज है. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट नाउन फ्रेज वर्क एज ए नाउन. एक सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज को अगर फाइंड आउट करना है तो नाउन फ्रेज नाउन की तरह वर्क करेगा. नाउन जैसे होता है नेमिंग वर्ड्स, ठीक है. नाउन में पहले नाउन होता है फिर उसकी वर्ब होती है. तो यहाँ पर आप देखें रीना वांटेड टू कुक डिनर. ओके रीना क्या बनाना चाहती है? डिनर बनाना चाहती है. आपको फ्रेज देखना है. फ्रेज कैसे पता चलेगा? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए. तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए. तो आपको इन्फिनिटिव दिख रहा है इधर? इन्फिनिटिव नहीं दिख रहा इसमें. टू वर्क टू कुक नहीं दिख रहा. टू कुक किसमें आता है? इन्फिनिटिव में. और इन्फिनिटिव क्या होती हैं आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब. तो ये आपका क्या हो गया? फ्रेज हो गया. आपको मिल गया फ्रेज. यहाँ ना तो कोई सब्जेक्ट है ना फाइनाइट वर्ब है. इन्फिनिटिव है जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है. अब आपको बताना है ये कौन सा फ्रेज है. तो रुकेट हियर. रीना क्या है आपका? सब्जेक्ट. और नाउन होता है ना, ये नाउन होता है ना. और जब भी आप नाउन फ्रेज करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा वॉट में. तो रीना क्या बनाना चाहती है? वॉट डज रीना वांट टू मेक? डिनर बनाना चाहती है. तो वॉट में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज. तो आपका इसका आंसर लिखना होगा नाउन फ्रेज. हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे. ही इज अ मैन ऑफ क्रूल नेचर. किस तरह का है वो? क्रूल नेचर, निर्दयी नेचर का. अब आपको एक और चीज है इन एन एडजेक्टिव. ये कौन सा है यहाँ पर देखिए. ओ ही आ गया, इज आ गया, अब मैन आ गया. ये इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है इस पूरे सेंटेंस का. ऑफ क्रूल नेचर इसका कोई कंप्लीट मीनिंग है. इट मींस इट इज अ फ्रेज. अब आपको पता कैसे चलेगा ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. तो जब एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताता है. इट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन. तो ये मैन की क्वालिटी बता रहा है. मैन की क्वालिटी बता रहा है ना, क्रूल नेचर का है. तो इट मींस ये कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज. ओके नाउ नेक्स्ट. वी लुक्ड फॉर द पपी एवरीवेयर. हमने पपी को हर जगह देखा. हर जगह देखा. प्लेस बता रहा है वो. प्लेस किस में आएगा? एडवर्ब में आएगा ना. एडवर्ब का काइंड होता है ना. एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और वर्ब को. तो यहाँ देखिए वी लुक्ड फॉर द पप्पी एवरीवेयर. तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसा वर्ड लूं जिसका कोई मतलब नहीं हो. फ्रेज क्या है यहाँ पर? हु विल टेल मी द फ्रेज इन दिस सेंटेंस? वी आपका सब्जेक्ट हो गया, लुक्ड आपका फाइनाइट वर्ब. ओनली एवरीवेयर. हाँ द पपी या फिर एवरीवेयर है? तो कौन सा हो गया ये? एडवर्ब क्लोज. प्लेस बता रहा है, सॉरी एडवर्ब फ्रेज. नाउ द फोन इज मेड इन चाइना. फोन कहाँ पर बना है? कहाँ? चाइना. तो यहाँ पर फोन की क्या बताई जा रही है? क्वालिटी. क्वालिटी क्वालिटी किसमें बताई जाती है? एडजेक्टिव में. किसमें? अब यहाँ ये तो हमारा नाउन हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई. तो मेड इन चाइना क्या हो गया? फ्रेज हो गई. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज.
ओके, आई एंजॉय गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक। अब इसके अंदर आप देखिए देयर आर टू वर्ब्स। प्रियांशी व्हाट हैपेंड, वो एंजॉय एंड गोइंग, टू वर्ब आर हियर, टू वर्ब्स हैं यहाँ पर। तो पूर्वी स्टैंड अप बेटा, एंजॉय कौन सी है और गोइंग कौन सी है? Who will tell me enjoy and going? Finite, non-finite बतानी है। Who can? Yes, Trishika. Yes, Pratik. Very good, Pratik. Enjoy is finite and going non-finite. आपने देखो, आप आई एंजॉय को चेंज कर सकते हो टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपने यहाँ टेंस अकॉर्डिंग चेंज किया तो इंजॉयड हो जाएगा, गोइंग चेंज होगा। गोइंग तो आपका क्या है यहाँ पर, बताइए क्या है यहाँ पर? जिरेंड है ना, जिरेंड है ना। और नॉन फाइनाइट वर्ब जिसके अंदर आता है तो वो क्या हो जाता है आपका? फ्रेज। तो ये कौन सा फ्रेज है बताओ? आई इंजॉय गोइंग, उसे क्या पसंद है? व्हाट? नाउन फ्रेज। ओके, सिट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following sentences and state their kind, whether they are simple, simple, compound, compound and complex. So many time I have explained this. इन तीनों को फाइंड आउट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट द क्लोजेस। क्लोजेस हमने पढ़े हैं। व्हाट इज एन क्लोज? क्लोजेस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। इसके अंदर, फ्रेज के अंदर नॉन फाइनाइट होती है और क्लोज में क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। ओके, क्लोजेस में फाइनाइट वर्ब होता है एंड इट हैज टू पार्ट, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे देयर आर टू क्लोजेस इन वन सेंटेंस। और जहां पर सिर्फ एक ही क्लोज होता है वो होता है आपका सिंपल सेंटेंस। ओके, ये सिंपल है, ये क्या लिख दिया? सिंपल। ठीक है, जहां पर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा वो होता है सिंपल। और जहां पर आपको टू क्लोजेस मिलेंगे, वन इंडिपेंडेंट एक वन डिपेंडेंट, वो होता है कॉम्प्लेक्स। और बोथ आर इंडिपेंडेंट, जो दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, वो आपका होता है कंपाउंड। कंपाउंड ज्यादातर जॉइंट होता है एंड से, बट से। ओके, इफ और वेदर से कनेक्ट होता है कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद दूसरे सेंटेंस को पढ़कर ही उसका कंप्लीट सेंस निकलता है। तो फर्स्ट है द बॉय वाज टायर्ड। देयर इज वन सब्जेक्ट, वन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लोज है। तो व्हाट इज दिस? सिंपल सेंटेंस। ही कैन कम फर्स्ट, वो फर्स्ट आ सकता था इफ ही राइट्स ब्यूटीफुल। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपको इसको पढ़कर ही पता चलेगा। और इफ और वेदर से कौन से कनेक्टेड होता है? कॉम्प्लेक्स। द सिटी वॉज बिग। सिटी कैसी है? बिग है। और ये किससे कनेक्टेड है? एंड द पीपल वर जेनरस। यस प्रियांशी, कंपाउंड। मोर, रोहन डिडंट लाइक द पुडिंग। रोहन को पुडिंग पसंद नहीं आई, ये एक सेंटेंस है। बट शी एट मीन्स ये द प्रिपरेशन, बट उसने प्रिपरेशन पसंद की। यस, द कंपाउंड। विच सेंटेंस? मैंने बताया था बट से और एंड से क्या कनेक्ट होता है?
compound. Do not make noise. Now next, identify the clauses in the following sentences and state their kind. अब यहाँ पर ऑलरेडी अंडरलाइन है आपके क्लॉजेस, बस आपको बताना है ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है एंड एडवर्ब क्लॉज है. वैसे ही पता चलेगा जैसे फ्रेजेस में चला था. That noun clause always come before, always come in your independent clause. जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वहीं पर आपका नाउन क्लॉज होता है. एंड ऑलवेज स्टार्टिंग में आपका नाउन होगा देन वर्ब होगा. एडजेक्टिव में वो नाउन को मॉडिफाई करेगा एंड एडवर्ब में या तो उसका मैनर बताएगा, प्लेस या फिर टाइम. ओके. द स्टूडेंट सैड. स्टूडेंट ने क्या कहा? दैट द टेस्ट वाज इजी. व्हाट में आ रहा आंसर क्या आएगा? नाउन क्लॉज. फिर है द बुक दैट आई वाज रीडिंग yesterday is on the table. That I was reading yesterday, कल पढ़ रही थी, टाइम बता रहा है. Adverb clause. Use the paint brush. उसको कह रहा है पेंट ब्रश यूज करो. As I showed you yesterday, जो मैंने आपको कल दिखाई थी. Adverb clause. अगेन यहाँ पर भी टाइम बता रहा है. He thought. उसने सोचा. क्या सोचा? That his dog was lost. उसका डॉग खो गया. What he thought? Now, इतना आप लोग इतना कैसे सोचते हो बताने में आंसर? When I am speaking the answer कि बोट, जब बोट में अगर कोई पूछा जा रहा है तो इट मीन्स वो क्या है आपका? नाउन है. I forgot. मैं भूल गया. What you asked me to do. जो तुमने मुझसे करने को बोला. नाउन क्लोज. वेरी गुड. अब एडजेक्टिव तो आया ही नहीं आपका. ओके. ग्रामर फिनिश. अब राइटिंग पोर्शन होगा आपका. ग्रामर में वही टॉपिक्स आएंगे that I have explained many times and I have taken CT also. Okay, now for that there will be a poster. Design a poster on the theme keep your city clean. You may focus on the importance of water नहीं. यहाँ क्लीनिनेस के बारे में बताना है और ये गलती से प्रिंट हो गया. How teacher can help you to clean. Okay. So first of all you will make a picture. सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे क्या? कीप योर सिटी क्लीन. ये हमारा बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए. बोल्ड लेटर मीन्स कैपिटल लेटर में होगा. तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको किसी भी सूरत पर स्मॉल लेटर यूज नहीं करने हैं. इफ यू विल यूज देन आई विल कट योर मार्क्स. Like this. Then you will make a picture of clean city India. Clean city को किस तरह से आप clean city का एक पिक्चर बनाएंगे. Then you have to write the slogan about it. उसका एक स्लोगन लिखेंगे. जो स्लोगन आप उसके लिए लिख रहे हैं that also should be in bold letters. वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए. After that you will write issued by. जिससे इशू कराया गया है वो स्लोगन, उसके बारे में जब आप लिखेंगे that can be in small letter. जो इशूड बाय करते हैं आप वो आपका स्मॉल लेटर्स में हो सकता है कि वो जो आपने स्लोगन राइट किया है दैट हैज इशूड बाय
जो भी नेम आप लिख रहे हैं। अंडरस्टूड? कैसे पोस्टर मेकिंग होगा? ओके, नेक्स्ट, write a story on the following topics given below. There will be 3 story that I have already told you. ये तीनों story आपने कर रखी हैं. Naughty Monkeys, The Real Master and Honest Woodcutter. As whatever you want to do, जो भी आप करना चाहें, इसमें से आपको एक करनी रहेगी. Okay, but you should remember that your story should be in simple past tense. हमेशा स्टोरी जो लिखी जाती है वो सिंपल पास्ट टेंस में होती है, बिकॉज स्टोरी पहले लिखी जा चुकी है, जस्ट वी आर रीडिंग दैम, तो वो सिंपल पास्ट में होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट, देयर विल बी अ पिक्चर कंपोजिशन. एक पिक्चर कंपोजिशन होगा. यू हैव टू लुक द पिक्चर. आपको जैसे पिक्चर देखिए, लुक एट दिस. यहाँ पर एक पिक्चर, okay, there is a picture. So simple sentences, I'm just giving an example of it. This picture shows a scene of a garden where children and a woman are planting saplings. आप देख रहे हो कि वो पौधे लगा रही है, saplings ग्रो कर रही है. ठीक है, फिर आप बोलोगे a boy is watering the plants. एक boy है जो प्लांट को वाटर दे रहा है with a watering cane. उसके हाथ में एक watering cane है. A girl is planting a sapling in the soil. एक जो लड़की है जो ये क्या कर रही है, planting a sapling, मिट्टी में उकर रही है. फिर सेकंड क्या कर रहा है, a woman is instructing the children on how to plant the sapling. ये इंस्ट्रक्शंस दे रही है इनको किस तरह से इनको प्लांट करना है सैपलिंग्स को. फिर है in the background a mountain is visible. पीछे बैकग्राउंड में इनको माउंटेन दिख रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा. The sky has some light clouds. बादल कैसे हैं उसके बारे में भी लिखा कि स्काई क्लाउड्स हैं. Another girl is carrying a basket of saplings on her head. दूसरी गर्ल के सर पर सैपलिंग्स का बास्केट रखा हुआ है, वो लेकर आ रही है, कैरी कर रही है. All the children are wearing school uniforms. ये सारा जो चल रहा है वो किसी स्कूल में चल रहा है, तो स्कूल यूनिफॉर्म्स में वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं. Small saplings are being planted in the garden. छोटे 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 सैपलिंग्स प्लांट किए गए हैं. एंड द एनवायरमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रीन. आप देख सकते हो पिक्चर में जैसे कि बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ. एंड दिस पिक्चर प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग फॉर द एनवायरमेंट. इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि इसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको एनवायरमेंट के लिए केयरिंग रहना और अवेयर रहना. इन दिस वे देयर विल बी अ पिक्चर. कैसा भी पिक्चर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द पिक्चर केयरफुली and you will make the sentence on this picture. ठीक है, पिक्चर्स को देखने के बाद आपको पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है. किसमें बनाना है? You will not use their past and simple present. कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? is, am, are plus ing. याद रख लेना, पिक्चर कंपोजिशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है. हेल्पिंग वर्ब होगी is, am, are plus ing. वर्ब के साथ ing आएगा. Okay, you have to do. There you have to make some sentences based on this picture. At least you have to make 6 to 8. 6 या 8 sentences आपको बनाने हैं. This picture is very easy. Okay. Now next, section 4 या part 4. यहाँ पर आपके unseen passage रहेगा और एक question answers रहेंगे. Question answers आपके reader chapters के होंगे. That I have already told you. So you have to read the chapters carefully and you have to learn the question answers. और unseen passage को करने से पहले first what happens? First of all you have to read the passage. Passage को करने से पहले passage को read करते हैं. Okay? After that sometime what happen, we don't know the meaning of some difficult words. हमें उनका मीनिंग समझ नहीं आता है, तो आप उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ लेंगे. Okay? Then after you will make the question answer in your own language. आपको क्वेश्चन पढ़ना है कौन सी टेंस में है, टेंस का ध्यान रखना है. अगर क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर पास्ट में होगा, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर प्रेजेंट में होगा. इस चीज का ध्यान रखना है. और ये नहीं कि हाँ लाइन मैच करके आंसर बनाते हैं. योर आंसर यू हैव टू मेक इन योर ओन लैंग्वेज. एंटोनिम है, सिनोनिम है. इफ दे आर आस्किंग तो यू
अगर वो भी पास्ट टेंस में है तो उसका आंसर भी पास्ट में होगा। जस्ट लाइक दैट, अगर वहां पर लाइक्ड है, इसका एंटोनिम लिखना है तो आपको यहाँ पर डिसलाइक्ड करना है। लव्ड है तो इसका आंसर हेटेड में होगा, उसी टेंस में आंसर होता है। आपने लव्ड का हेट कर दिया, वो गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? Okay, I hope these questions will help you in exams. You have to watch again. Okay, thank you everyone.